Hello friends, my name is Dr. Amol Thakre and today we are going to start a chapter that is stereochemistry, and this is the first part of stereochemistry. So these are the contents of the topic. Firstly, we discuss about the introduction, then what is meant by isomerism, the concept of optical isomerism, a symmetric carbon atom, elements of symmetry, what is meant by the enantiomer, diastereomer, the configuration, D and L configuration, R and S configuration, then the racemization, and finally the resolution. So in this chapter, in this part, we have to discuss all these kinds of points. So we start with the introduction. So friends, simply, stereochemistry is a branch of chemistry which deals with three-dimensional study of molecules. अगर किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हम थ्री डायमेंशनल एंगल से थ्री डायमेंशनल व्यू से अगर डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को स्टीरियोकेमिस्ट्री ब्रांच कहा जाता है. So the compound having same molecular formula but different physical and chemical properties are called as isomers. So दो कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट अगर वो कंपाउंड्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफर हो एक दूसरे से, तो उन दोनों को आइसोमर्स कहा जाएगा एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म. ओके, सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. अगर हम जनरल एग्जांपल लें आइसोमर्स या फिर आइसोमेरिज्म का, तो हमारे पास तीन कंपाउंड्स हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड न्यूपेंटेन. अगर हम तीनों का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो ऑल द थ्री कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट इज C5H12, C5H12 and C5H12. But these three compound does not show the same physical and chemical properties because they having a different structures. और अगर वो सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे तो हम उनको कहेंगे दैट दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड एज अ आइसोमेरिज्म. नाउ देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. The compounds having same molecular formula but different structures are called as a structural isomers of each other and phenomenon is called as a structural isomerism. So अगर किसी compounds का molecular formula same है but उनके structures different है, so वो isomer है but स्पेशली दे आर आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. जैसे एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड न्यूपेंटेन है कि तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये तीनों भी एक दूसरे के क्या हो गए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए. नाउ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म इज ऑफ फॉलोइंग टाइप. एक होती है द फंक्शनल आइसोमेरिज्म, सेकंड द पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड द चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म and the fourth one is the metamerism. इनको हम देखेंगे what is meant by the functional, position, chain and metamerism. Now यहाँ पे आप देख सकते हो these are the two isomers which are called as the functional isomers of each other. Why? Because ये first molecule aldehyde है and second molecule ketone है. अगर हम दोनों का molecular formula अगर देखते हैं, so they having a C3 H6O, again C3 H6O as a same molecular formula, but these two compounds are differ with each other in case of functional group. कि प्रोपेनल में as aldehyde functional group present है and प्रोपेनोन में, इसको एसीटोन भी कहा जाता है, उसमें कीटोन as a functional group present है. So the two compounds having same molecular formula and different structure called as a structural isomers, but as they differ with each other in case of functional group, they are called as a functional isomers of each other. Second one, we have a position isomerism. Now look towards these three compounds. सभी में OH as a functional group present है, but
फोकस ऑन द पोजिशन ऑफ OH। सपोज इसको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन एटम एज लेबल करते हैं, तो इस मॉलिक्यूल में OH थर्ड कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, यहाँ पे वो फोर्थ पे चला गया, एंड इन दिस मॉलिक्यूल इट इज प्रेजेंट इन अ फिफ्थ कार्बन एटम. So the functional group is same, but the position of OH or the position of functional group is different in these three molecules. That's why इन तीनों मॉलिक्यूल को एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स कहा जाएगा, एंड द फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज अ पोजिशन आइसोमरिज्म. थर्ड वन, again same molecular formula but difference in a chain. The pentane is a straight chain molecule with no branch, isopentane is with one branch, and the neopentane is with two branch. So अगर ये तीनों भी कंपाउंड एक दूसरे से डिफर है इन केस ऑफ चेन, तो इनको कहा जाता है चेन आइसोमर्स, एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड एज अ चेन और न्यूक्लियर आइसोमरिज्म. And the last type of structural isomers is the metamerism. When on the either side of functional group, when there is a change in the group of atom or in the structures, then such isomers are called as a metamers, and the phenomenon is called as a metamerism. अब आप देखो, this is the diethyl ether and ये है methyl propyl ether. This is the ether compound कि ऑक्सीजन के एडजेसेंट साइड में अल्किल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा. सो इन डाइथिल ईथर ऑन आइदर साइड ऑफ ऑक्सीजन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इथिल ग्रुप. लेफ्ट हैंड साइड में भी इथिल है, राइट हैंड साइड में भी इथिल है. बट इन अ मिथिल प्रोपिल ईथर एक साइड में मिथिल ग्रुप है और एक साइड में प्रोपिल ग्रुप है. सो डिफरेंस कैसा हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट जो एडजेसेंट साइड में जो अल्किल ग्रुप्स अटैच है ना, उनमें डिफरेंस है. यहाँ दोनों भी इथिल ग्रुप है, यहाँ पे एक मिथिल और एक प्रोपिल ग्रुप है. दैट्स व्हाई द डाइथिल ईथर एंड द मिथिल प्रोपिल ईथर्स आर कॉल्ड एज अ मेटामर्स ऑफ ईच अदर, एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड एज अ मेटामेरिज्म. द सेम थिंग इज हैपन इन केस ऑफ डाइथिलामाइन एंड मिथिल प्रोपिल अमाइन. सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ structural isomers: functional isomers, position isomers, chain or nuclear isomers, and the metamers. Now in this chapter we have to discuss about the next part of isomers, which is called as a stereoisomers, and the phenomenon is called as a stereoisomerism. So the compounds having same molecular formula but different arrangement of atoms or groups in the space is called as a stereoisomerism. The compound having same molecular formula contains same number of atoms but different arrangements of either atoms or either group in a space in a three-dimensional view is called as a stereoisomerism. So this is the three-dimensional structure of a ethane molecule which is rotated in a space, and this is called as one of the type of stereoisomer. अब इस stereoisomers के भी फॉलोइंग टाइप्स होते हैं. एक तो है ऑप्टिकल आइसोमर्स, दूसरा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एंड थर्ड है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स. तो इस चैप्टर में आपको तीन पार्ट है. पहले पार्ट में हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, सेकेंड पार्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में, एंड थर्ड पार्ट में conformational isomerism के बारे में. Then we discuss about the optical isomerism. So the isomers that can rotate the plane of plane polarized light are called as optical isomers, and the phenomenon is called as optical isomerism. तो जो कोई भी आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को अगर रोटेट कर सकता है, that isomer is called as optical isomer, and the phenomenon is called as optical isomer. अब इससे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है that what is the meaning of plane polarized light. अब आप देखो, we compare the plane polarized light with the ordinary light. Ordinary light में क्या होता है? The ordinary light having waves vibrating in all direction. अगर आप कोई लाइट ऑन करते हो आपके रूम में, उसका लाइट ओवरऑल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ऐसे लाइट को हम क्या कहेंगे? इट
इट इज कॉल्ड एज अ ऑर्डिनरी लाइट। अब आप देख सकते हो सारे एरो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सभी जगह पे। सो इसको कहा जाता है हैविंग लाइट वेव्स वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शन, और ऐसा होगा इन केस ऑफ ऑर्डिनरी लाइट। बट यहां पे आप देख सकते हो दिस इज द इमेज फॉर द प्लेन पोलराइज्ड लाइट वाइब्रेटिंग इन वन डायरेक्शन। यहाँ पे लाइट वेव्स का डिस्ट्रीब्यूशन वाइब्रेशन सारे डायरेक्शन में नहीं है, एक तो अपवर्ड में है या तो एक तो डाउनवर्ड में है। ऐसे लाइट को कहा जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर हम बैटरी ऑन करते हैं तो उसका जो लाइट जाएगा ना, एक इन द फॉर्म ऑफ बीम जाएगा, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। दैट बीम इज कॉल्ड एज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और यहाँ पे हमें इस तरह के प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में डिस्कस करना है कि उसका अगर प्लेन कोई मॉलिक्यूल रोटेट करता है तो उसको ही हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। सो द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड टू रोटेट अ प्लेन polarized light in a clockwise और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। मींस जो रोटेशन होगा उस पोलराइज लाइट का वो दोनों भी डायरेक्शन में हो सकता है, एक तो क्लॉकवाइज या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज। एंड इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो ऑप्टिकल आइसोमर्स शोज द प्रॉपर्टी व्हिच इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। नाउ दिस इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सपोज किसी मॉलिक्यूल ने इसके प्लेन को अगर लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर दिया, मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, या फिर उसको राइट हैंड साइड में रोटेट कर दिया, मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। मींस जो रोटेशन है वो आइदर क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो दिस इज द इमेज फॉर द ऑर्डिनरी लाइट एंड दिस इज फॉर द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यहाँ पे लाइट वेव्स सारे डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट यहाँ पे लाइट वेव्स एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ what is mean by the dextrorotatory substance, which is also denoted by the small d and the plus. The optical isomers which rotate plane of a plane polarized light in a clockwise direction or right direction are called as a dextrorotatory substance. क्योंकि हमने पहले ही बोला है जो कोई भी रोटेट करता है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, बट उसमें ही अगर कोई राइट हैंड साइड में या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो उसको हम कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिव, बट स्पेशली इट इज द डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और एक मॉलिक्यूल में अगर उनको इस तरह के डायरेक्शन में रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस, स्मॉल डी और प्लस। एंड इफ the optical isomer which rotate the plane polarized light in anti-clockwise direction or the left direction, then it is called as a levorotatory substance. So the plane polarized light left hand side में rotate कर दिया, anti-clockwise direction में rotate कर दिया, ऐसे substance को हम क्या कहेंगे, levorotatory substance. So both dextrorotatory and levorotatory are optically active substance. बट अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, सो डेफिनेटली सच अ कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी। एंड इफ अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा, सो द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ लेवोरोटेटरी सब्सटेंस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज मीन बाय द asymmetric carbon atom. The carbon atom to which 4 different atoms or groups are attached is called as a asymmetric carbon atom. अगर किसी एटम को 4 डिफरेंट तरीके के अलग अलग एटम्स या फिर ग्रुप्स अटैच है तो उस कार्बन को हम कहेंगे asymmetric carbon atom. So if you have a C as a carbon and 4 different atom or group of atom like A, B, D and E अगर है, so such a carbon is called as asymmetric carbon atom. अब यहाँ पे देख सकते हो ये इस कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। एक है COH,
Next one is the OH, then CH3 and EH. Then such a carbon is called as a asymmetric carbon atom. अगर यहाँ पे दोनों भी हाइड्रोजन होते ना तो हम ऐसे केस में इस कार्बन को असिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं कहते, क्योंकि हमें चारों भी ग्रुप्स क्या चाहिए, डिफरेंट चाहिए. अगेन यहाँ पे भी असिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है बिकॉज हियर वी हैव 4 डिफरेंट ग्रुप, OH, Br, F and hydrogen. So such a carbon atom is called as a asymmetric carbon